हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस 5 क्वेश्चंस अ डे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैट। दोस्तों, कैट 2021 के क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं एंड आई एम श्योर all of you must be enjoying this module and all of you must be enjoying our protalentdigital.com. that's a new website. ठीक है, protalentdigital.com के ऊपर हमने काफ़ी अच्छी मेहनत करी आपके लिए, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना भूलिएगा मत. सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, दिस इज अ डिटेल सॉल्यूशन, सो डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन is equal to, now what is a regular hexagon? Where all sides are equal. Okay, so the area of regular hexagon is basically nothing but, you can say, area of 6 equilateral triangle. What is the area of one equilateral triangle? If this side is a, this is root 3 by 4 a square. That's the area of one equilateral triangle multiplied by 6. This is the area of hexagon. Okay, ठीक है, which is equal to the area of equilateral triangle of side 12. So this is equal to root 3 by 4 into 12 square. Okay, that's a very simple thing. So ये कट गया, ये कट गया. Okay, so we are left with a square becomes, you can say, 12 divided by, or rather 12 square divided by 6. So a is 12 by root 6. Okay, so they are asking us what is the side. Okay, side is very easy. So this is 6 into 2 by root 6. So this is, you can say, 2 root 6 is the answer. Answer would be 2 root 6. Easy, very good. I'm sure all of you understand this. Hexagon has the area which is regular hexagon where all the sides are equal, and the area would be 6 times root 3 by 4 a square. Okay, और equilateral triangle का area root 3 by 4 a square. That's very easy. चलिए, ग्रेट, मज़ेदार सा क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन, ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ईजी बनेगा. ऑनियन इज सोल्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स at the rate of 10, 20, 25, 25 and 50 per kg. Okay, ठीक है, so that is 5 months, 1, 2, 3, 4, 5, it is 10, 20, 25, 25 and 50. A family spends a fixed amount of money on onion. ठीक है, that's a fixed amount of money they are spending. ठीक है, on each of the first 3 months. ठीक है, and then spends half of that amount on onion for each of the next 2 months. ठीक है, okay, so पहले 3 महीने के लिए they are spending same amount. ठीक है, so these numbers are 10, 20, 25, 25, 50. so taking a number of 100 rupees, ठीक है, हर बार फिक्स करते हैं और उसके बाद 50-50 करते हैं. that should be a good way to look at it. okay, ठीक है, the average expense for onion in rupees per kg for the family over the 5 month is closest to. so total money divided by total kg is what we have to find out. What is the total money? 100, 100, 100, 300 plus 50 plus 50, that's a 400 rupees. Okay, that's a total 400 rupees. What is the quantity they are getting? Initially here they are getting 10 kg, here they are getting 5 kg, here they are getting 4 kg, here they are getting 2 kg, and this is 2 kg. Okay, so 400 rupees upon total kg is what they are actually expecting us to do. है ना, एकदम easy question. So this is 10 plus you can say 5 plus 4 plus 4. so ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 15 plus you can say 8, है ना. so that makes it to कितना हुआ ये, some around 23 kg. okay, so 400 divided by 23, and they are saying it is closest to, it is closest to. okay, ठीक है, so 400 divided by 23 will be approximately some around in the range of 18. okay, I hope it is very clear to everyone. चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी easy था. okay, great, we go to the next question. now this is very interesting question, है ना. conceptually जब ये छोटा क्वेश्चन होता है ना, तो कंसेप्ट बहुत बड़े लगते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ r is constant such that modulus of x square minus 4x minus 13 is equal to r has exactly 3 distinct real roots, then what is the value of r?
दोस्तों लॉजिकली अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो मॉड्यूलस के अंदर है। मॉड्यूलस के दो आंसर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यस और नो। सो दैट मीन्स, है ना, अगर मॉड्यूलस में अगर दो आंसर हो रहे हैं तो मेरे दो रूट पॉसिबल है, यस और नो। आई एम एबल टू गेट टू रूट्स, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने बोला थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा भैया? ये तभी पॉसिबल होगा जब, है ना, ध्यान से समझिएगा, जब यू कैन से यहां पे एक वैल्यू होगी जो पॉजिटिव होगी, उसके द्वारा दो रूट निकलेंगे। फिर एक वैल्यू इसकी होगी जो नेगेटिव होगी, जिसके द्वारा और दो रूट निकलेंगे। उनमें से एक रूट पॉसिबल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इज दैट ओके? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। कैसे करेंगे? सो आई में पॉसिबल स्टार्ट विथ एन इक्वेशन, ठीक है। क्या कर सकता हूँ? से फॉर एग्जाम्पल ऐसे आई टेक 15, है ना, मैं ट्राई करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगा। और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 15। ये दो रूट्स बनेंगे, मतलब दो इक्वेशंस बनेंगे, और दोनों से दो दो रूट बनेंगे, ये सुनो। चलिए ग्रेट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, अब आपको रियल रूट चाहिए। क्या इसको, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा, सो विल आई गेट अ रियल रूट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट तभी बनते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, सो हमारे इस केस में हम लगाएंगे -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -28, ठीक है। ये वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, परफेक्ट है ना। अब यहाँ पे डाल के देखते हैं, यस और नो। चलिए देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज -4 का होल स्क्वायर माइनस, यू कैन से 4 इंटू 1 इंटू 2, ओके। सो दिस इज 16 माइनस 4 2 8, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, विच मीन्स यहाँ से दो रूट निकले, यहाँ से दो रूट निकले, ठीक है। देर आर टू, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो देर आर टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड रियल रूट्स आर देयर। हमें तो चाहिए तीन रूट, मतलब कहीं से दो और किधर से एक, कहीं से दो और किधर से एक, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी अनदर वन, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 18। आई एम टेकिंग अनदर ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 18। देखो, ऑप्शन से करने में बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, फटाफट कर लोगे। मेंटली अगर क्लियर कर पाओगे तो काम इजी हो जाएगा। सो दिस, ये इधर जाएगा, ठीक है। सो -18 इधर जाएगा, सो इट विल बिकम सम अराउंड 8 + 3 इज 11, ठीक है। सो दैट मेक्स इट 2, कितना, -31 इक्वल टू 0। इसके तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 18 इधर आएगा, प्लस होगा, +5 इक्वल टू 0, और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, सो ये हो गया आपका 16, और ये -20, ये तो लेस देन 0 हो गया, बराबर। इसके दो रूट, मतलब इसके दो रूट निकलेंगे, इसका तो एक भी रियल रूट नहीं निकलेगा, तो ये आंसर नहीं है, यस और नो। सो देयरफॉर लेट्स, 18 के ऊपर वाला आंसर हो ही नहीं सकता, तो अब जाएगा 17 वाला, विच इज ईजी, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 17, इसके तो पक्का ही दो रूट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और -17 इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा आपका +4 इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ से एक ही रूट निकलेगा, सो दैट मीन्स यहाँ के दो रूट और यहाँ का एक रूट, आप देख सकते हैं इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यस और नो। सो दैट मीन्स यहाँ के दो और यहाँ का एक, सो आंसर वुड बी 17। दैट इज वन ऑफ द इजी वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? वेरी गुड। वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9। अमल परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपीज ईच। कितनी पेन खरीदता है? पता नहीं। लेट इज अज्यूम x कितने में खरीदता है?
8 rupees per, you can say, pen. To sell this, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of this pen at 12 rupees each. 100 रुपये में 12 पेन तो बेच ही देता है. ऑफ द रिमेनिंग कितनी बची? x माइनस 100. ये सर नो, टोटल एक्स पेन्स थी, उनमें से 100 पेन तो 12 रुपये पे बेचता है. रिमेनिंग ही सेलिंग एट 11 रुपीज एंड देयर बाई ही मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 300. मतलब ये पैसा, ये उसका सेलिंग का पैसा हुआ, ये पैसा हुआ, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है ना. कॉस्ट प्राइस में उस बंदे का वेज भी इंक्लूड करना पड़ेगा. वेज प्लस 300 इज इक्वल टू ये पैसा. ये सर नो. तो आपके पास दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन हुआ. ठीक है. वाइल ही मेक्स अ नेट लॉस ऑफ 300 इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट 9 ईच. मतलब सेम स्टफ, x इंटू 8 प्लस वेजेस माइनस 300 का लॉस इज इक्वल टू 100 तो वो 12 पे ही बेचता है, पर रिमेनिंग वो बेचता है कितने पे? ठीक है, एट 9 रुपीज ईच. तो ये हो गए आपके दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल. सॉल्व करना बहुत इजी है. ठीक है, पर मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं मतलब यू कैन से 1 और 2 है ना. मतलब अगर इसका कैलकुलेशन करूं तो 1 माइनस 2 करूंगा. ठीक है, तो मेरा आप देख सकते हैं x बाई एट कट जाएगा है ना, माइनस होगा. ये माइनस होगा तो w कट जाएगा, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 600. ठीक है ना. ये माइनस है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. व्हाट आई एम डूइंग इज 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है, और जब ये माइनस करूंगा सो व्हाट आई विल गेट इज x माइनस 100 इंटू 11 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2. सो दैट मीन्स x माइनस 100 इज इक्वल टू 300 एंड देयरफॉर माई x इज इक्वल टू 400. मेरे पास कितनी पेन्स थी? 400 पेन. ये सुनो, अब 400 पेन का मेरा टोटल पैसा कितना लगता था? आप देखिए ना, बहुत इजी हो गया अब मेरा काम. ठीक है, 400 पेन. ठीक है, ये हो गया मेरा 1200 प्लस 11 इंटू 300 विच इज 3300. ठीक है, ओके. ये मेरा टोटल पैसा हुआ विच इज 4500 इज माई टोटल मनी. ठीक है, उनमें से मैं 300 रुपीज माइनस कर दूं, 300 रुपीज माइनस कर दूं. ठीक है, तो वो हो गया मेरा 4200 इज व्हाट माई नेट कॉस्ट. ठीक है, उनमें से मेरी 8 रुपये पे 400 पेन खरीदनी है. 8 4 3200. ठीक है, सो 3200 माइनस कर दूंगा. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज वेज इज इक्वल टू 1000 रुपीज. कितने रुपीज का वेज आया? 1000. ठीक है ना, काफी इजी था. इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन को सॉल्व करना था, एंड आई एम श्योर इट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन. ठीक है, वी गो टू क्वेश्चन नंबर 10. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अनिल invests some money at the fixed rate of interest compounded annually. So I'm sure you know annual compounding ka formula is amount is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n. That's a formula. Yes or no? That's everyone knows. If the interest accrued during the second and third year are this is interest. Okay, interest accrued. This is not an amount. Remember, this is an equation for an amount. Okay, if I want to find out interest ka formula, then interest is equal to amount minus principal, which is P into 1 plus R upon 100 to the power n minus P. That is my interest. Okay, so interest after second year, which is after second year is, I don't know what is P, but that is P into 1 plus R upon 100 to the power n, which is n equal to 2 minus P is equal to 806.25. What is interest after third year? This P into 1 plus R upon 100 to the power 3 minus P is equal to 866.72. ठीक है, what are they asking us? What is the interest accrued? ठीक है, during the fourth year में कितना होगा? I4 would be P into 1 plus R upon 100 to the power 4 minus P. ये हमें ढूंढना है. सही है, चलो बढ़िया. ठीक है, now if I want to find out this, I know P कॉमन निकल गया. I am left with 1 plus R upon 100 to the power 4 minus 1. ये मेरा फॉर्मूला बचा.
ठीक है, दैट्स अ फॉर्मूला आई एम लेफ्ट विथ, ठीक है। सो दोस्तों अब मैं इनको जब डिवाइड करूंगा, सो आई गेट इज 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब. सो व्हाट आई एम डूइंग इज 1 and 2, so I'm doing is 2 divided by 1, okay, ठीक है, minus 1 upon 1 plus r upon 100 whole square minus 1 is equal to 866.72 divided by 806.25. ऐसा होगा, सही है, चलो बढ़िया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये हर बार, है ना, ये जो रेशियो है वो हर बार सेम होने वाला है, ये सुनो बराबर है, चलो बढ़िया, ठीक है। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। अब आप इसको समझे थोड़ा सा, अगर मैं आपको इजी फॉर्मेट में इसको समझाऊं, ये तो इक्वेशन आपको समझ में आया, इसी इक्वेशन से ये सॉल्व होगा, ठीक है, पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका अमाउंट है, बराबर है, ठीक है। आपका प्रिंसिपल ऑन ईयर 1 इज पी, ओके, आपका इंटरेस्ट है आर, अगर आर है, ठीक है, आर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो पी इंटू आर बाई 100 है। अब 100 को लिख नहीं रहे, आप एज्यूम कर लेते हैं कि आर के अंदर ही 100 आ चुका है, ठीक है, ओके, और आपका अमाउंट हो जाएगा पी प्लस पी आर, सही है, विच इज नथिंग बट पी इंटू 1 प्लस आर। जब ईयर 2 होगा तो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा P इंटू 1 प्लस आर, ठीक है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा P इंटू 1 प्लस आर इंटू आर लगेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट हैपन्स ऑन ईयर 3, P इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर विल बी माई प्रिंसिपल, माई इंटरेस्ट वुड बी P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर एंड माई अमाउंट वुड बी P इंटू 1 प्लस आर का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं मेरा इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ये बिल्कुल अच्छे से नोट करिएगा। माई इंटरेस्ट इज ग्रोइंग एट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर बार 1 प्लस आर ऐड होता है, ये सुनो, ठीक है, विच मीन्स अगर मुझे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का रेशियो पता है, विच इज P इंटू आर, दिस इज I3 अपॉन I2, ठीक है, इज 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन P इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर, ये दिया गया है, तो पी आर चला गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, सो दिस इज I3 बाई I2 इज 1 प्लस आर। सो दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट I4 बाई I3, ठीक है, I4 बाई I3 इज ऑल्सो 1 प्लस आर, yes or no, ठीक है। सो दैट मीन्स माई I4 वुड बी 1 प्लस आर इंटू I3, सिंपल है, समझ आया सबको। व्हाट इज माई 1 प्लस आर, ठीक है, देखिए दोस्तों, व्हाट इज माई 1 प्लस आर, I3 बाई I2, व्हाट इज I3 बाई I2, I3 बाई I2 इज 866.72 डिवाइडेड बाई 806.25, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम दैट आई गेट, यू कैन से दिस I4, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, माई I4 इज इक्वल टू 866.72 divided by 806.25 into I3 is 866.72, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर दिया होगा, नंबर डालेंगे एंड विल गेट अवर आंसर, ठीक है। आप डाल के देख लीजिए व्हाट इज द आंसर। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, कंफर्टेबल है, चलिए ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस मॉड्यूल विद अस, ठीक है, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आते तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।